फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, मीन्स कहाँ से शुरू किया जाए इसको। तो अपने आप में एनाटॉमी बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत वाइड फील्ड है, और इसकी प्रॉपर स्टडी नर्सिंग वगैरह के कोर्सेज में भी काफ़ी की जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। आप एक वीडियो देख लीजिए, ग्रॉस वीडियो है। The human body is a complex network of cells, tissues, and organs that together वीडियो आ रही है सभी के स्क्रीन पे? make life possible. 10 major systems are responsible for the body's functions. Skeletal, ये एक ओवरऑल एक muscular, आपके मन में पिक्चर बन जाएगी। cardiovascular, nervous, endocrine, lymphatic, respiratory, digestive, urinary, reproductive. The skeletal, muscular, cardiovascular, and nervous systems in particular create an infrastructure that facilitates the other systems. The adult skeletal system is a framework of over 200 bones. They hold the body together, give it shape, and protect its organs and tissues. The skeleton also provides anchor points for the muscular system, which includes 3 types of muscles: skeletal, smooth, and cardiac. They are found throughout the body and facilitate movement. Nestled within these muscles is the cardiovascular system, a pipeline that includes the heart, blood vessels, and the blood itself. Also called the circulatory system, the cardiovascular system delivers oxygen, white blood cells, hormones, and nutrients throughout the body. Lastly, the nervous system is a communication network of nerve cells that the body uses to transmit information and coordinate bodily functions. It's comprised of the brain, the hub of sensory and intellectual activity, the spinal cord, and the many cranial and spinal nerves that emanate from them. This infrastructure, created by neurons, blood, muscles, and bone. हाँ बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? किसका डिवाइस है ये गैलेक्सी जिसने हैंड रेज किया है? आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, इट मींस कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने गलती से कर दिया होगा। Allows 3 other systems to regulate the body's environment: the endocrine, lymphatic, and urinary systems. The endocrine system is a series of glands that use information carried by the nervous system to help regulate the body's processes. Thanks to this neural connection, endocrine glands, such as the thyroid, are aware of the amount of hormones and other chemicals they need to produce. These chemicals are then distributed throughout the body by way of the cardiovascular system. Cardiovascular and nervous किसके यहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट कर दीजिए। by the lymphatic system, a collection of lymph nodes and vessels that help regulate the body's defenses. Also called the immune system, the lymphatic system uses neural pathways to transmit information about affected areas of the body and then sends out healing agents like white blood cells via the blood. किसकी आवाज आ रही है? सर बहुत फ्लक्चुएट हो रही है आवाज। बंद हो गई सर। वीडियो की आवाज आ रही है आप सभी को? अभी नहीं आ रही। Uses neural pathways to transmit information about affected areas of the body and then sends out healing agents like white blood cells via the bloodstream. Another key regulatory system is the urinary system, which includes the kidneys, ureters, bladder, and urethra. The urinary or renal system maintains the body's electrolyte levels and filters waste from the blood. This waste is sent through the blood vessels into the kidneys and then expelled as urine. All of these systems require energy to function,
and that's where the respiratory and digestive systems come in. The respiratory system is a group of passageways and organs that extracts life-giving oxygen from the air we breathe. Air enters the body through nasal cavities, travels down the throat, and is then transported to the lungs. The lungs extract oxygen for the body to use and then expel a carbon dioxide byproduct when we exhale. Energy can also come in the form of food. The digestive system is an approximately 30-foot series of organs that convert food into fuel. Food enters the system through the mouth, then moves into the esophagus, the stomach, and the intestines. Nutrients are absorbed into the body while solid waste is expelled through the anal canal, the end of the digestive tract. No matter the role, size, or shape of any of the body's systems, each began with the reproductive system. This system is responsible for creating life. The primary organs involved differ between the sexes, with ovaries, fallopian tubes, the uterus, and vagina found in women, and testes and a sperm channel found in men. Together, fertilization may occur, organ systems form, and then a child is born. Humans are complicated organisms, but when our 10 major organ systems are healthy, they ensure our well-being. चलिए, तो वीडियो सभी ने देख लिया। तो ये एक ओवरव्यू था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है उसके लिए, और इसमें से काफी सारी चीजें आपके लिए नई नहीं होंगी क्योंकि आपने ऑलरेडी इन सारी चीजों को पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा हम एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे और आज थोड़ा सा उसका ओरिएंटेशन करेंगे, मीन्स उसको स्टार्टअप देंगे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में देंगे, मीन्स सिस्टम्स और बॉडी सिस्टम और स्ट्रक्चर से भी पहले की जो चीजें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एनाटॉमी एक्चुअली है क्या। तो उसमें बहुत सारे माइन्यूट चीजें भी आएंगी, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें भी आएंगी। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं होंगे, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं होगी, बहुत ज्यादा पढ़ी होगी तो 10th तक पढ़ी होगी। तो उसके टर्म्स में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आप देन एंड देयर आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप हाथ उठा के। और जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टर्म्स बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे, उनको वो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो आप में से कोई ऐसा है जो साइंस बैकग्राउंड से रहा हो? कोई भी नहीं है, सभी लोग आर्ट्स एंड कॉमर्स के हैं। अच्छा, शालिनी है, और कौन है? बोल सकते हैं आप, माइक ऑन करके बोल दीजिए। मैं हूँ सर, गौरव। गौरव, चलिए ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो थोड़ा ये नॉर्मल ही रहेगा। बाकी लोगों के लिए जो टर्म यूज किए जाएंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको पूछिएगा जो भी आपको नहीं समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम इसका ओरिएंटेशन स्टार्ट करते हैं। ये मेरे कुछ नोट्स के पेजेज हैं जो मैंने आपको पीपीटी पे पेस्ट किए हुए हैं। ये मैंने तब बनाए थे जब मैं मास्टर्स में था, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था उसमें एनाटॉमी को, उसमें मैंने ये बनाया था। और इसके लिए मैंने 2-3 बुक्स कंसल्ट की थी। एक फेमस बुक है रॉस एंड विल्सन की, एक्सरसाइज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, फॉरेन राइटर हैं, काफी अच्छा इन्होंने लिखा है, तो वो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल उसकी मीनिंग से। As you know that the human body is like a highly technical and sophisticated machine, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा। It operates as a single entity, लेकिन इतनी सारी मशीनरी के बाद भी ये एक सिंगल यूनिट की तरह चलती है, सिंगल एंटिटी की तरह चलती है। किसके डायरेक्शन पे चलती है? हमारे ब्रेन के डायरेक्शन पे चलती है। ठीक है, यानी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो एक डिसीजन को फॉलो करता है, जो हमारा ब्रेन हमें कन्वे करता है। इट ऑपरेट्स एज अ सिंगल एंटिटी बट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ सिस्टम्स दैट वर्क इंटरडिपेंडेंटली। मींस एक दूसरे पे वो सिस्टम्स जो हमारे बॉडी के हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ईच सिस्टम इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक एंड समटाइम्स रिलेटेड फंक्शन दैट इज नॉर्मली एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी देखा था कि जो हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स हैं, जो 10 सिस्टम इस वीडियो में आपको दिखाए गए थे, वो सारे सिस्टम जब अपने अपने तरीके से अच्छे फंक्शन करते हैं,
आप उनका जो भी इसेंशियल फंक्शन है वो प्रॉपर कर पाते हैं, तभी हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है, वो सही तरीके से रह पाता है। या एक वर्ड आपने सुना होगा, होम्योस्टेसिस, सुना है आपने? बताइए, नहीं सुना है? चलिए ठीक है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि जितने भी आपके बॉडी के सिस्टम हैं, या एज अ ग्रॉस हम बात करें आपकी, तो एज ए इंडिविजुअल आपकी जो बॉडी सिस्टम्स हैं वो अपने नॉर्मल लेवल पे हैं, या आप नॉर्मेलिटी की तरफ हैं, मीन्स आप नॉर्मली रह रहे हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस माइंड में नहीं है, कोई भी बॉडी एक नहीं है, एक मतलब कोई पेन नहीं है आपके बॉडी में कहीं भी किसी पार्ट में, कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, कोई भी आपको डिजीज नहीं है। तो ये आपकी नॉर्मलसी है, मीन्स आप एक होम्योस्टेसिस में है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि द फिनोमिना इन विच वी आर इन जीरो डिस्टर्बेंस, मीन्स कोई भी डिस्टर्बेंस आपको नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आप एक होम्योस्टेसिस के स्टेटस में हैं। ठीक है, तो इफ वन ऑफ द सिस्टम्स फेल, आगे इसमें लिखा हुआ है, इट मे ऑल्सो इफेक्ट सम और मोर टू द अदर सिस्टम्स, मींस इसमें से हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, जो मेजर 10 सिस्टम्स हैं, इसमें से एक भी सिस्टम अगर कुछ परसेंटेज से भी अगर फेल हो रहा है, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है फंक्शनिंग में, प्रॉपर फंक्शनिंग में, तो उसका इफेक्ट मोर और लेस दूसरे फंक्शंस पे भी जरूर पड़ेगा, या दूसरे बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उस पर जरूर पड़ेगा। ठीक है, आपने हेल्थ एजुकेशन में भी पढ़ा होगा, एक डेफिनेशन पढ़ा होगा कि हेल्थ इज नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने कि केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज का मतलब ही नहीं है कि हेल्दी है एक इंडिविजुअल, या पॉजिटिव हेल्थ, या आपने उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ऑप्टिमम हेल्थ। तो द ऑप्टिमम हेल्थ फॉर टुडे मे बी डिफरेंट फॉर द ऑप्टिमम हेल्थ ऑफ टुमारो। आज जिस लेवल पे हमारी हेल्थ का स्टेटस है, या जिस लेवल पे हमारी हेल्थ स्टैंड कर रही है, कल उससे ज्यादा, यानी उससे ऊपर भी हो सकता है और उससे नीचे भी हो सकता है। इसका मतलब कि हम जो हेल्थ है वो डायनेमिकली चेंज होने वाली फिनोमिना है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए हम कंप्लीट हेल्थ वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम ऑप्टिमम हेल्थ यूज करते हैं, क्योंकि वो डे बाय डे चेंज होती रहती है आपके हैबिट्स की वजह से, और जो भी चीजें एक्टिविटीज आपकी हैं उसकी वजह से, और आपकी बॉडी की कैपेसिटी की वजह से। ठीक है, तो ये तो हो गया हेल्थ से रिलेटेड चीजें। तो ठीक वैसे ही ये सारे सिस्टम्स ही आपके एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के फंक्शनिंग को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब, सो टू अंडरस्टैंड दीज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी वी हैव टू स्टडी एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब जब हम मानव शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी संरचनाओं के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, कैसे वो बना है। तो अलग अलग जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग तरीके से बने हैं, तो उनका हम स्ट्रक्चर एक तरीके से देखेंगे इसमें। ठीक है, ये अभी जो फर्स्ट स्लाइड का एक्सप्लेनेशन है, इसमें कहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा मुझे। और रिगार्डिंग लैंग्वेज भी मैं बिल्कुल सिंपल जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको यूज कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं बना रहा हूँ। बीच बीच में लैंग्वेज थोड़ी सी हिंदी भी यूज कर सकता हूँ कि आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसको थोड़ा इंग्लिश से थोड़े दूर भागते हैं। आती सबको है, सब समझ लेते हैं, लेकिन एक आपने एक फोबिया बना लिया है कि हमें इंग्लिश से डर लगता है इंग्लिश में, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, आप मैक्सिमम जगह पे जो टर्मिनोलॉजी देखेंगे वो इंग्लिश में ही देखेंगे। लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर कौन सा स्टेट बताया था बॉडी का जब बॉडी की हेल्थ ऑप्टिमम होती है? हाइपो क्या? ऑप्टिमम हेल्थ नहीं सर, ऑप्टिमम हेल्थ होती है, उसको होम्योस्टेसिस, कुछ कहते हैं ना। होम्योस्टेसिस, सर होम्यो, सर आवाज नहीं आ रही। HOMEOSTASIS, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, SIS। होम्योस्टेसिस, ठीक सर। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी नॉर्मेलिटी है, मींस कोई भी चीज नॉर्मल है, तो उसको हम स्टेटस ऑफ होम्योस्टेसिस कह सकते हैं, चाहे वो कोई केमिकल कंपाउंड हो या ह्यूमन बॉडी हो। अच्छा। और उसके फैक्टर्स, उसके डिस्टर्बेंस के अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं।
चलिए आगे फर्दर इसको डिस्क्राइब किया गया है। एनाटॉमी द स्टडी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। जो हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स हैं उसके बारे में, और उनका रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे से, मीन्स आपस में क्या को रिलेशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। There are many wonders in the world, but none is more than the human body। बिल्कुल सही बात है कि आपने 7 वंडर्स का नाम सुना होगा पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उससे ज्यादा वंडरफुल और एस्टोनिशिंग या मीन्स आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत कम ही लेयर्स हैं ह्यूमन बीइंग की या ह्यूमन बॉडी की जिसको साइंस एक्सप्लोर कर पाया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे अगर बात करें तो इट स्टडीज द फॉर्म्स एंड कंपोजिशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स वेरियस ऑर्गन्स। मीन्स एनाटॉमी के अंदर में हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्म्स एंड कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मीन्स कैसे बनी है ह्यूमन बॉडी, क्या उसका स्ट्रक्चर है बेसिक, और जो हमारे वेरियस ऑर्गन्स है उनके क्या स्ट्रक्चर, सच एज फॉर एग्जांपल बोन्स, मसल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो मसल्स का नाम आप सभी ने सुना होगा, तो मैं आपसे थोड़ा सा एक डिस्कशन करना चाहता हूँ कि मसल्स जो वर्ड है इससे आप क्या समझते हैं। ग्रॉस एक जो आप मतलब समझते हैं वो बताइए। आई डोंट वांट टू गो इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ मसल्स, जस्ट इन जनरल व्हाट डू यू कलेक्ट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मसल, यू कैन डिस्कस। हाँ मत बताइए। A group of tissues। ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ठीक है, सही है, आगे चलिए। Protecting skeleton। The muscle is form of many group of fibers. Layers between them 3 types of layers: epimysium, perimysium, endomysium। ठीक है, काफी टेक्निकल नॉलेज है आपको मसल्स की। और कोई कुछ इसमें एडअप करना चाहेगा ग्रॉस स्ट्रक्चर के बेस पे, ऐसे इन जनरल? सर मसल वो है सर जो मूवमेंट करने में हेल्प कराती है। हाँ, मसल मूवमेंट करने में हेल्प कराती है, गुड। आप बताइए शालिनी। सर प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द स्केलेटल फ्रेमवर्क। ठीक है, ये एक बेसिक एलिमेंट है, बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है मसल का। और अगर हम मसल के फंक्शन की बात करें, वो तो स्ट्रक्चरल हो गया, एक फ्रेमवर्क पूरे स्केलेटल सिस्टम को दे दिया, तो इसका एक ही फंक्शन होता है जिसके 2 वैल्यूज हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ह्यूमन बॉडी की मसल्स में यही प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स होती है, ये बेसिक फंक्शन है उसका, जिसकी वजह से अक्रॉस द बॉडी बहुत सारे मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके थोड़ा सा कहाँ से ये वर्ड आया, तो आपको देख सकते हैं, ये आपको किसी बुक में मिल जाएगा। इट इज ओरिएंटेड फ्रॉम द गीक वर्ड एनाटोम। एना मींस अप एंड टोन मींस टू कट और टू डाइसेक्ट। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम या कोई भी पार्ट बॉडी का जब कट करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, तभी उसके बारे में आपको डिटेल उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। जैसे कि कुछ लोगों ने साइंस के प्रैक्टिकल्स में फ्रॉग डाइसेक्शन किया होगा, या आपने बहुत सारे लोगों ने बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में प्लांट्स का भी कुछ स्टडी किया होगा, या ह्यूमन सलाइवा के बारे में स्टडी किया होगा, उसकी सेल कैसे होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एनाटॉमी में वही मतलब है कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मीन्स उसकी जो रूपरेखा है, यानी बनावट कैसी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और कुछ जगह कॉन्सेप्ट में आप ये कह सकते हैं कि एनाटॉमी में कुछ चीजों के फंक्शन भी दिखते हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर उसका पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ उसका फंक्शन उसमें एसोसिएटेड रहते हैं। तो बहुत सारे लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पूरी तरह से डिफरेंट भी बताते हैं, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों पैरेलल ही चलती है, और कुछ पार्ट्स ऑफ एनाटॉमी में आप उसके फंक्शन की भी बात कर लेते हैं। या ये कॉन्सेप्ट आपको और आगे क्लियर हो जाएगा जब आप सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चूंकि जब एक किसी पार्ट का, पार्टिकल का, सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं बहुत सारे, उसका जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा फंक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये करंट स्लाइड आप सभी को समझ में आ गई है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। थोड़ा सा स्लो पेस में ही हम चलेंगे, इसलिए क्योंकि चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आगे आएंगी, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो।
चलिए, ये मेथड्स ऑफ एनाटॉमी हैं कुछ। लिविंग एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ये सब मेथड्स हैं जिसके थ्रू एनाटॉमी में हम काम करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, ये आप ऐसे ही देख मतलब माइंड में स्टोर करने के लिए आप इसको रख सकते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी इन फिजिकल एजुकेशन, तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंस लिखे होंगे अपने नोट्स में, और जब ग्रेजुअली हमारी क्लास प्रोग्रेस होगी एनाटॉमी की, तो आप एक्चुअल में वो इम्पोर्टेंस क्यों है और कहाँ से आता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आप काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इन जनरल ये आपके सामने, इसको बहुत ज़्यादा इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप उसकी बेसिक नॉलेज आपके पास होगी तो आप अपने आप ही उसका इम्प्लीकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको कभी क्वेश्चन भी आ सकता है लिखने के लिए, तो उसके लिए ये सारी चीजें आपके सामने कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल साइंस, तो कहीं कहीं पे इसको स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल साइंस भी कहा जाता है। वैसे बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का ही है, लेकिन कहीं कहीं इसके साथ फंक्शन भी आ जाते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, मसल्स के बारे में इसमें स्टडी करते हैं, तो मसल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उससे होने वाले कॉन्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, जिससे हम कोई भी ट्रेनिंग या ये सारी चीजें डिजाइन कर पाते हैं। उसके आगे जॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरी इसके अंदर आता है कि जो एथलीट आपका है या जो स्टूडेंट जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको आप इंजरी से कैसे बचा सकते हैं। तो इंजरी से आप तभी बचा पाएंगे जब आपको प्रॉपर नॉलेज मसल जॉइंट्स के बारे में होगी, तभी जो भी हमारे बॉडी के जॉइंट्स हैं अलग अलग, उनकी रेंज ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है, कौन कौन से पॉसिबल मूवमेंट्स होते हैं, उसके बेस पे ही आप उसको एक्सरसाइज बताएंगे, तभी उसकी जो इंजरी होगी उसके चांसेस मिनिमाइज होंगे। क्योंकि अब मान लीजिए अगर हम हिंज ज्वाइंट की बात करें, जो हमारे एल्बो और नी ज्वाइंट में होता है बेसिकली, तो हिंज ज्वाइंट को हिंदी में शायद कब्जा संधि ऐसा कुछ कहते हैं, मैंने सुना था कहीं, जो आपके दरवाजे में एक लगा होता है ना, दरवाजे को वॉल से अटैच करने के लिए, उसी टाइप का होता है। तो उसमें केवल एक्सटेंशन और फ्लेक्शन ही होता है, तो उसके अलावा कोई मूवमेंट अगर उसमें आपका एथलीट या आपका स्टूडेंट कर रहा है तो उसको इंजरी होने के चांसेस हो जाएंगे। यानी जिस जॉइंट के अलोंग जो मूवमेंट पॉसिबल है वही मूवमेंट केवल करनी है। ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद आपका है नॉलेज ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ बॉडी, ब्लड, सेल्स, टिश्यू, बोन, ये सारी चीजें आप एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट या डायरेक्ट एप्लीकेशन आपके किसी भी ट्रेनिंग में या फिजिकल एजुकेशन में आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा आपको क्या इंपॉर्टेंस होती है फिजिकल एजुकेशन में एनाटॉमी की। इसमें कोई क्वेरी है तो आप बताइए मुझे। चलिए, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चूंकि हमारा अभी पहले ही हमने बात की थी, एक तरीके से आप ह्यूमन बॉडी को 8th वंडर या 9th वंडर, कुछ लोग कहते हैं 8th वंडर पहले से ही वर्ल्ड में, तो हम मान लेते हैं 9th वंडर हमारी ह्यूमन बॉडी है। तो इसमें अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी है स्ट्रक्चर के बेस पे। विद इन द बॉडी देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आगे एक फिगर भी है, उससे आप देखेंगे थोड़ा सा। द लोवेस्ट लेवल इज केमिकल, जो सबसे लोवेस्ट लेवल है जहां से हम इसको ओरिएंट कर रहे हैं एनाटॉमी को, ये बहुत पहले है उन सारी चीजों से जो आप बॉडी के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उससे भी पहले है ये सारी चीजें। तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा। तो जब फ्यूचर में आप इससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, जैसे आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, या बहुत सारे अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, या लिपिड्स के बारे में, फैट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, तो इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो एटम्स सबको पता है एटम्स क्या होते हैं। कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ विच देयर आर अ वास्ट रेंज इन द बॉडी, the structures, properties and function of important biological molecule also must be considered। तो एटम से ही मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से ही फर्दर आगे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है, ये आपने मुझे लगता है कि 6th या 7th की साइंस की बुक में पढ़ा होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो किसी को नहीं होगी। कोई कंफ्यूजन है तो आप उसी समय पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है कि हमें नहीं आता तो हम पूछेंगे नहीं। सेल्स की अगर हम बात करें, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ लिविंग मैटर। कोई भी लिविंग मटेरियल, लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
तो उस सेल क्या होता है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, या इसको हम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है, सेल को कहते हैं। एंड देयर आर ट्रिलियंस ऑफ देम विद इन द बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में तो बहुत सारी है, मीन्स आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते। Each cell type has become specialized and carries out a particular function that contributes the body needs. जो भी हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इन सारी सेल्स का अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है। और आपको पता है कि सेल्स ही फर्दर सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ टिश्यू, और फर्दर उससे कैसे कैसे आगे डेवलपमेंट होता है वो भी आपने देखा होगा। द सेल्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, आपके सामने भी लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है उसकी। फिर उसके बाद टिश्यू बन गया। अब उसके बाद आगे हम देखें तो ऑर्गन्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड हैव इवॉल्व्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। मींस उनका मोटो, गोल, एम एक है, बहुत सारे टिश्यूज अलग अलग तरीके के मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं जिसका कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ठीक है। अब ये कई सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गन सिस्टम जो आपने अभी वीडियोज में देखे हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, रेस्पिरेटरी हो, कार्डियोवास्कुलर हो, एक्सक्रीटरी हो, नर्वस हो, ये सारे सिस्टम्स जो हैं अलग अलग ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन बॉडी आता है। ह्यूमन बीइंग हैज सेवरल सिस्टम्स व्हिच वर्क इंटरडिपेंडेंटली, मीन्स आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। कैरिंग आउट स्पेसिफिक फंक्शन ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ, मीन्स यही सारी चीजें मिलके एक ह्यूमन बॉडी को बनाती हैं। तो अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखा वो आप सभी को क्लियर है? बताइए, कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो आप अभी बताइए, क्योंकि चीजें अब थोड़ी सी और इससे टिपिकल और कॉम्प्लेक्स होंगी। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। ये आपने, यही स्ट्रक्चर है जो आपने अभी डेफिनेशन बहुत सारी पढ़ी। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता था उस समय कुछ चीजें बना लेता था तो देखने में थोड़ा विजिबल और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इतनी भी खराब ड्राइंग नहीं है, ठीक है। तो यानी एटम्स, हाँ बताइए, किसकी आवाज आ रही, बोलिए। कोई क्वेश्चन है आपका? हेमंत देख लेना, किसी ने हैंड रेज किया तो मुझे बता देना। कोई है जिसने हैंड रेज किया? नहीं। चलिए ठीक है। तो जो हमने अभी डिस्कशन किया इससे पहले, एटम्स के बारे में डिस्कशन किया, मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन किया, या हमारा केमिकल लेवल है, यहाँ से स्टार्ट होता है लाइफ। उसके बाद सेलुलर